அதாவது இந்த இந்தியாவோட மதர் செட்டப் பண்ணீங்களா, மதர் செட்டப் இருக்குல்ல, அது புரிஞ்சுக்கிட்டாலே நீங்க நிச்சயமா கடவுளை பார்க்குறீங்க. நம்ம அதை தெரியாம உட்காந்துருக்கோம், நம்ம தெரியாம உட்காந்துருக்கோம். மத செட்டப்பு எப்படி இந்தியால வந்தது, என்னது இது மத செட்டப்பு, இங்கதான் நிறைய மத செட்டப். அதனால இது என்னன்னு தெரியாம இருக்கிறதால आप परमात्मा को देखना है तो आप क्या करना है, बहुत जरूरी है कि आप हिस्ट्री समझना है, भारत का हिस्ट्री समझना है। हम भारत में हैं इसलिए भारत का हिस्ट्री समझना है। भारत की हिस्ट्री आप समझ लेंगे, जरूर आप परमात्मा को देख लेंगे। पहला हिस्ट्री ये है कि आपको पता चलना चाहिए संस्कृत कब से इंडिया में आया, ये पहले सीख लें। पहली बात यह है संस्कृत कब इंडिया में आया, ठीक है ना। और वो क्या है, वो कैसे चलता है, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, சமஸ்கிருதம் எப்போ இந்தியாவுக்குள்ள வந்தது, அது எப்படி வந்தது, அது என்ன பாஷை, அது எப்படி பேசினாங்க, அது என்ன செஞ்சாங்க, இது நீங்க ரொம்ப தெளிவா தெரியணும்। ये आप समझ लेते हैं तो 100% मैं बोलता हूं आप परमात्मा को बिल्कुल समझ लेंगे, 100% समझ लेंगे। ये पहली बात। इसके बारे में सब एक्सप्लेन करेंगे, आपको चाहिए तो मैं एक्सप्लेन करेंगे। இது முதல் விஷயம், அதாவது சான்ஸ்கிரிட் எப்போ இந்தியாவுக்குள்ள வந்தது, அது என்ன, எப்படி, யார் ஃபாலோ பண்ணாங்க, என்ன பேசினாங்க அப்படின்றது தெரியும், நம்பர் 1। நம்பர் 2 தெரிய வேண்டியது, இந்த நாட்டுல எந்த மதம் முதல்ல இருந்தது, இந்த நாட்டுல எந்த மதம் முதல்ல இருந்தது, அப்புறம் என்ன ஆச்சு, இந்த हिस्ट्री தெரியணும்। அப்ப முதல்ல எந்த மதம் இருந்தது தெரியணும்। भारत में कौन सा धर्म पहले था, वो धर्म, उसके बाद क्या क्या हुआ, ये समझना है। ये दूसरी बात है, पहला क्या धर्म था, वो धर्म क्या क्या हुआ, अभी वो धर्म को क्या हुआ, उसके बाद कैसे ये धर्म आया, नंबर 2। नंबर 3 आपको पता चलना चाहिए कि हिंदुइज्म क्या है और हिंदू रिलीजन क्या है। आपको समझना चाहिए हिंदुइज्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है। சிவாஜி ஏன் கை ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, கொஞ்சம் கை கீழ்படுங்க, இல்ல என்ன சொல்லணுமா, இல்ல தெரியாம பிரஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? ओके, அப்போ क्या चाहिए आपको, ये मालूम होना चाहिए कि ये कभी ये பாருங்க எப்படி டிஸ்டர்ब பண்ணீங்க பாருங்க, कभी ये धर्म, कौन सा धर्म आया है, ये बोला मैंने, क्या धर्म था, वो तीसरी बात। दूसरा बात क्या है, क्या आप समझ रहे हैं कि हाँ हिंदुइज्म क्या है, हिंदू रिलीजन क्या है। இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம், இந்து மதம்னா என்ன, இந்துயிசம்னா என்ன, ரொம்ப முக்கியமா தெரியும்। இந்து மதம்னா என்ன, இந்துயிசம்னா என்ன। ओके, और दूसरी बात क्या समझना है, ये हिंदू रिलीजन में शैविज्म क्या है, वैष्णविज्म क्या है, इसके बगैर और कुछ है, इसके बगैर और कुछ है, हिंदू रिलीजन में इसके बगैर और कुछ है, ये समझना है, ठीक है। और
ये समझना है। इसके बाद ये हिंदुइज्म को लेके क्यों इतना हंगामा चल रहा है, और इससे इस हिंदुइज्म की बात में इतने बड़े करते हैं ना, इससे मनुष्य को क्या मिला है। ये 5-6 प्रश्न आप पूछ के इसका जवाब नहीं ढूंढेंगे, आप परमात्मा को नहीं देख सकते। ये भारत के हिसाब से இந்த 6-5 விஷயங்களை நீங்க ஆராயலைன்னா, நீங்க தேடலைன்னா, நிச்சயமா சொல்றேன், கடவுள் உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. கடவுளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். கடவுளே தெரியாம இருட்டுல கிடக்குறாங்க பாருங்க. அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா, அப்படி கடவுளுக்கு எதிராக வேலை செஞ்சு அப்படியே பீஸ் பீஸா நொறுங்கிடுவாங்க. அவங்க வாழ்க்கை பாத்தீங்கன்னா கடைசியில அவ்வளவு பாடுபடுவாங்க பாருங்க. இந்த கடவுளை தெரியாதவங்க சொல்றேன், இந்த கடவுள் விஷயத்தையே கேட்க வேணான்னு இருக்கிறவங்க, இந்த கடவுள் விஷயம்லாம் நான் கேட்க மாட்டேன், அவனுக்கு எதிராக என்ன பண்ணுவேன், அந்த ஆளு ஓட்டுறதுக்கு தான் சொன்னேன். ஒரு ஆள் வந்தாரு, அவர் ஓட்டுறதுக்கு தான் சொன்னேன், வேற ஒண்ணு இல்லை. எட்டி எட்டி பாக்குறாங்க. ஏன் தெரியுமா, எவ்வளவு பேர் இங்க இருக்கிறாங்க, மலையாளிஸ் தான், வேற யாரும் இல்ல. வேற ஏதோ மலையாளி இருக்கிறான் இங்க, அவனை பிடிச்சிட்டு போலாம். எட்டி பாக்குறேன். எட்டி பார்க்கும்போது தான் சொன்னேன், அவன் பிச்சு பீஸ் பீஸ் ஆயிடுவான்னு ஓடி போயிட்டான். பயங்கரமான ஜென்மங்க இதுங்க கடவுளை பயப்படாத ஒரு ஜென்மம் இருக்கு, ஒரு கூட்டம் இருக்கு, கடவுளே பயப்படாத கூட்டம். வாடா ஒரு கை பார்க்கலாம் கடவுள்கிட்டயே चैलेंज பண்ற கூட்டம் அது. ओके, एक आदमी आया, परमात्मा का दुष्ट है, वो अंदर घुस के देखता है कितने लोग इधर आए हैं, क्या हो रहा है इधर। ये परमात्मा को नहीं पसंद करते हैं, परमात्मा के बारे में बात करना नहीं चाहते। ठीक है, वो आपको मालूम नहीं, वो मालवाड़ी लोग, समझे, छोड़ दे उनको। और ये चीज हमारे भारत के अनुसार समझना है। और दूसरा क्या समझना है आप, दूसरा ये समझना है कि दुनिया भर में परमात्मा कैसा काम करता है और दुनिया भर में कैसा काम करते हैं और भारत में क्या काम करते हैं। अभी मेरा बीबीसी क्लास खत्म हुआ, इसका डायग्राम इधर देख रहे हैं। तो समझ ले, ये सारा चीज आप कभी ढूंढे, कभी सोचे, कभी हमारे भारत के लोग ये सब कभी सोचे नहीं सोचे, इसलिए लोग ऐसा है। सच्ची बोलता हूं, जब आप समझेंगे और इसके बारे में सोचेंगे, ये भारत में क्या हो गया, भारत में ये सब क्या हुआ और दुनिया में क्या हुआ और दुनिया में और भारत में क्या फर्क है, दुनिया में किधर परमात्मा काम करता है और इंडिया में कैसा काम करता है, ये कैसा ये फर्क हुआ, ये क्यों इधर अजीब सा लगता है, दुनिया में क्यों नहीं लगता है, और इधर का बात पूरा दुनिया में क्यों फैलाए नहीं, क्यों वो लोग दूसरी तरफ से जिंदगी जी रहे। क्योंकि आप देखेंगे भारत बहुत छोटी जगह है, पूरा दुनिया में देखेंगे तो छोटा है ना, तो इसी के अंदर हम परमात्मा को ज्यादा बात करते हैं। क्यों, इसका वजह क्या है, कौन है कारण, इसका कारण कौन है, ये ढूंढना है। देखिए कितना सारा चीज है, इतना सारा चीज हम 20 साल में रिसर्च किए, इतना सारा चीज हमने ढूंढे हैं, सारा चीज हम ढूंढे हैं। पहले ये ढूंढे हैं कि भारत में क्या धर्म था, पहले ये ढूंढा हमने। दूसरा ये ढूंढा, ये संस्कृत, ये बोलते हैं ना संस्कृत से ये सब कुछ आया, तो संस्कृत कभी आया, ये ढूंढा हमने। संस्कृत नहीं है तो परमात्मा ही नहीं है बोल देते, ये कैसा है। आप देखेंगे तो पूरा इंडिया में तमिल को किधर भी नहीं रखा। क्यों,
मैं तमिल वाला नहीं हूं, मैं मलयाली हूं, मेरा मदर टंग मलयालम है और मेरा सारा भाषा मेरा है। सबको मैं मातृभाषा समझता हूं, सब लोगों को मैं भाई बहन समझता हूं, मेरा मेरा एक ही फैमिली के हैं समझता हूं सबको, क्योंकि भारतवासी है हम। इधर हम कोई फर्क नहीं देखते, भाषा का फर्क नहीं देखते, सब कुछ इक्वल है। इसका आप देखेंगे तो भारत तमिलनाडु के लोगों को ये मत नहीं पता है, सिर्फ आपको नहीं बताता हूं, तमिलनाडु लोगों को ये पता नहीं है क्या क्या ग्रंथ है, इसमें क्या क्या सत्य है, इसमें क्या क्या बताया है। तमिलनाडु लोग भी संस्कृत को ही देखते हैं, संस्कृत बोलेगा तभी परमात्मा है बोलते हैं तमिलनाडु वाले भी। इसलिए आप नहीं समझना मैं तमिलनाडु को सपोर्ट करता हूं। நான் என்ன சொன்னேன் இப்போனா, அவங்க நார்த் இந்தியான்றது அவங்க நினைக்கூடாது நான் தமிழ் ஆளு ஆனா தமிழ் சப்போர்ட் பண்ண, நான் சொல்லிட்டேன் நான் மலையாளி, ஆனா எல்லா பாஷையும் நான் ஒரு போலதான் பாக்குறேன், இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா பாஷையும் என்னோட சகோதர சகோதரிகளை தான் பாக்குறேன், ரைட்டுங்களா? அதுல நான் மாறுபாடு இல்லை. நான் உங்ககிட்ட இன்னொன்னு சொல்லிட்டேன், நீங்க நினைக்காதீங்க தமிழ் ஆளுங்கெல்லாம் தமிழ் தான் பாக்குறாங்க, இல்ல இல்ல, தமிழ் ஆளுங்க கூட சமஸ்கிருதம் தான் பாக்குறாங்க, சமஸ்கிருதம் இல்லாம கடவுளே இல்லைன்றாங்க. சோ முக்கியமா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் 20 வருஷம் நம்ம ரிசர்ச் பண்ணிருக்கோம், அதனாலதான் கடவுளை கண்டுபிடிச்சோம். அதுதான் அவருக்கு பிடிச்சிருந்தது பாருங்க, அவர் எங்க கிட்ட அதான் சொன்னாரு, நீ போய் ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் கண்டுபிடி, என்ன தேடாது, நீ ஃபர்ஸ்ட் இதை போய் கண்டுபிடி. मैं बोलता हूं आपको, परमात्मा 20 साल पहले मुझे यही बताया कि तुम जाके ये सब चेक करो, सारा बात तुम समझ के तुम सबको बताओ, पर्टिकुलरली भारत बताओ मैं किधर हूं और मैं उनको कितना चाहता हूं, और वो लोग मुझे कितना इग्नोर किए, वो लोग कितना हमें ना देख के रहते हैं, वो लोग खुद अपने अपने रूल बना के जा रहे हैं, जाके बोलो। मुझे भी नहीं मालूम उस टाइम पे, 22 साल पहले मैं जीरो था, जीरो, इसके बारे में ये क्लब्स भी मुझे मालूम नहीं। जब ये बोलना शुरू किया मुझे कुछ पता नहीं लगा, लेकिन अभी 22 साल के बाद देखता हूं वो कितना बोला है, परमात्मा कितना मुझे बताया है, वो सब सरासर सच निकला और बहुत बड़ा फायदा मुझे मिला उस इंफॉर्मेशन से। நல்லா புரிஞ்சுங்க, 20 வருஷம் முன்னாடி எனக்கு இதெல்லாம் சொல்லும் போது, 22 வருஷம் முன்னாடி இந்த இயர் 2000 இதெல்லாம் சொல்லும் போது எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல, எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலன்னு சொல்லிட்டேன். ஆனா இப்போ 22 வருஷத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு எல்லாமே தெரியுது, தெளிவா தெரியுது. இதெல்லாம் கத்துக்க சொன்னாரு, வேற ஒண்ணுமே சொல்லல, போய் இதெல்லாம் கத்துக்கொண்டாரு. அங்க துபாயில இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு கிறிஸ்டியானிட்டி அண்ட் இஸ்லாம் பக்காவா சொல்லி கொடுத்துட்டாரு. வாட் இஸ் கிறிஸ்டியானிட்டி, வாட் இஸ் இஸ்லாம் ரொம்ப கிளியரா சொல்லி கொடுத்துட்டாரு, அங்கேயே முடிச்சாரு, அந்த கதை அங்கேயே முடிஞ்சிச்சு பாருங்க. அப்புறம் இந்தியாவுக்கு வந்து ட்ரை பண்ண அவங்க கிட்ட, முடியல, நம்மளை பெருத்தியே விட்டாங்க, நீ ஹிந்து அப்படின்னு சொல்லி பெருத்தி விட்டாங்க. ஓகே ரைட், உங்களாலும் என்னாலும் உங்ககிட்ட ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்னு விட்டுட்டேன். அப்புறம் என்ன சொன்னாரு, நேரா போடா, இப்ப போய் வேதம் புராணம் உபநிஷத்துலாம் கரெக்டா சொல்லிட்டு இருக்காங்களே அவங்க கிட்ட போய் எல்லா சீக்கிரத்தோடு வெளியே போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னாரு. அங்க போய் உள்ள போய் பார்த்து எல்லாம் வெளியே எடுத்தா தலை சுத்திடுச்சு. என்னன்னா எல்லா புஸ்தகம் இருக்கிறது தான் அங்க இருக்கு. புரிஞ்சுங்க, ரொம்ப பெரிய விஷயங்க, ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம். நீங்க இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா போதுங்க, நீங்க इधर जस्ट पुरंजिता बोलो। मैं क्या बोलता हूं, ये समझने के बाद मेरा आंख खोल गया और कुछ नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा पहाड़ में बैठा ऐसा ध्यान किया और सब कुछ परमात्मा ने बताया, ऐसा नहीं है। मुझे सिर्फ ये बोला, पढ़ने के लिए बोला, जाके सीखो, जाके पढ़ो,
ये क्या हो रहा है, तुम्हारा भारत में क्या हो रहा है, इसी को मैं इसलिए बोला, मैं फिर से बोलता हूं, आपको शक है तो मुझे बुला के पूछ सकते हैं। पहले संस्कृत लैंग्वेज कभी आया, ठीक है, ये बताता हूं मैं। 150 एडी में आया। कभी आया? 150 एडी। क्यों ऐसा बोलता हूं? 3 बीसी तक, 2000 ईयर्स के पहले, 2000 के पहले 3 बीसी तक अशोका था। वो अशोका क्या कर रहा था, बहुत सारे ये ना पत्थर में लिखता था ना, उस बहुत सारा लिख के रखता था, उसमें एक में भी संस्कृत नहीं है। आप देख ले, आप जाके देख ले, एक में भी संस्कृत नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे संस्कृति नहीं है। आपको मालूम है, हमारे भारत में 2000 ईयर्स पहले कुछ नहीं था, हिंदू भी नहीं था, हिंदुइज्म भी नहीं था। ये कोई मानेंगे? आप चेक कर लो, हिंदू भी नहीं था, हिंदुइज्म भी नहीं था। நல்லா புரிஞ்சுங்க, பிசி 3 பிசி வரைக்கும் அசோக சக்கரவர்த்தி நிறைய கல்வெட்டு எழுதினார். கல்வெட்டுலாம் எழுத்து இருந்தது. ஒரு கல்வெட்டுல கூட நீங்க சமஸ்கிருதம் பார்க்க முடியாது, ஒரு கல்வெட்டுல கூட. நம்பர் 1. இன்னொன்னு, இந்த இயர் 2000, ஐ மீன் 2000 முன்னாடி, 2000 இயர்ஸ் முன்னாடி ஏடியில நீங்க ஹிந்துசமோ இந்து ரிலிஜனும் பார்த்திருக்க முடியாது, கிடையவே கிடையாது. இந்துசமும் கிடையாது, ஹிந்துன்ற பேரும் கிடையாது. எப்போ? 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இதெல்லாம் நீங்க யோசிச்சதுனால நீங்க நிறைய யோசிக்க தொடங்கிடுவீங்க. புரியுதுங்களா? நிறைய விஷயம் யோசிக்க தொடங்கிடுவீங்க. அப்போ நான் इधर योसिक सोच रहा हूं, मैं क्या बोलता हूं, आप यो सोचने लगेंगे ना, बहुत सारा सोचने लगेंगे। ये सच्चाई ढूंढे, और अगर सच नहीं है तो मुझे आके बोले, मैं जाके देखा। हिस्टोरिकली आप जो बोलते हैं वो गलत। 150 एडी में संस्कृत नहीं आया, संस्कृत मिलियन ईयर्स पहले आ गया। बताइए, मुझे कंफर्म करें। और दूसरी बात ये बोलता हूं, आप ये मुझे कंफर्म करें, 3 बीसी के पहले, 3 बीसी से आप संस्कृत किधर भी लिखा हुआ दिखाया, कोई बताया, किसी से भी पूछ ले, बता दे मुझे, मैं ले लेता हूं बात। और मैं बोलता हूं, ईयर 2000 ईयर्स के पहले, उसके पहले, एडी के पहले, बीसी में भारत में हिंदुइज्म भी नहीं है, हिंदू भी नहीं। ये मैं नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं तो गलत है। मैं एक आदमी कुछ बोलता हूं बोलेंगे, हिस्ट्री बोलता है, हिस्ट्री। आप हिस्ट्री जाके ढूंढो। तो आप समझ लेना। और ये एक और बात बोल देता हूं, आज एक और बात. அப்ப இப்ப இன்னொன்னு என்ன சொன்னேன், பிசிக்கு முன்னாடி கிடையாது. அப்புறம் இன்னொன்னு, பிசிக்கு இந்த இயர் 2000 இயர்ஸ் பேக் முன்னாடி हिंदू கிடையாது, हिंदू रिलीजन கிடையாது, हिंदुइज्म கிடையாது, राइट. और एक और बात बोलता हूं, ये हिंदुइज्म है ना, जो हिंदुइज्म बोलते हैं ना, हिंदू धर्म नहीं, हिंदुइज्म बोलते हैं ना, वो कभी आया मालूम है? 250 इयर्स पहले, 250 साल के पहले ही आया हिंदुइज्म का बात। हिंदुइज्म का बात सिर्फ 250 इयर्स पहले आया। एक जज ने बोला, जज ने बताया कि इसको हिंदुइज्म बोलते हैं बोल के पहला हिंदुइज्म नाम बोला है। ये सब मैं एक्सप्लेन करेगा, ये सब मैं आपको बताएगा, सब क्लास में बताएगा, ठीक है. ये बोला है हिंदुइज्म. பாருங்க, நான் என்ன சொல்றேன்னா, இந்துயிசம் எப்போ வந்ததுன்னா 250 வருஷம் முன்னாடி, 250 வருஷம் முன்னாடி தான்
ஒரு பிரிட்டிஷ் ஜட்ஜ் தான் சொன்னாரு இதுதான் இந்துயிசம். அவரோட ஃபுல் டீட்டெயில் பேரு எல்லா டீட்டெயிலும் நான் அப்புறம் சொல்றேன். நான் டீटेल போல இப்போ ஒரு पॉइंट மட்டும் சொல்றேன். तो 250 साल पहले ही बोला हिंदुइज्म और हिंदू धर्म के बारे में बोलेंगे। वो कभी आया मतलब में 6th सेंचुरी में ही शुरू हुआ। 6th सेंचुरी में वो भी हिंदू धर्म नहीं आया, भक्ति मार्ग बोल के शुरू हुआ। और 8वां शताब्दी में 8th सेंचुरी में ये शैवम और वैष्णवम बोल के दो हुआ। वो भी तमिलनाडु में हुआ और कहीं नहीं। ये सब हिस्टोरिकल बात है। तो हिंदू धर्म है वो हिंदू धर्म का क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं, फ्रेम और कुछ नहीं। इसलिए तमिल में बोलते हैं अनबे शिवम। अनबे शिवम का मतलब क्या है मालूम है? शिव ही प्यार है, प्यार ही भगवान है, इतना ही है, कोई रूप नहीं है। वो था हिंदू धर्म। वो भी 6th सेंचुरी में शुरू हुआ भक्ति मार्ग और 8वां शताब्दी में ये हुआ है। क्या हुआ है? ये शैविज्म वैष्णविज्म बोल के आया। इसका भी पूरा विस्तार मैं बताएगा। और ये भक्ति मार्ग कैसा है मालूम है? இன்னொன்னு உங்ககிட்ட சொல்லணும் என்னாச்சு, நான் என்ன சொன்னேன், 8வது 6வது செஞ்சுரியில தான் பக்தி மார்க்கம் தொடங்குது। 8வது செஞ்சுரியில தான் சைவிசம் வைஷ்ணவிசம் தொடங்குது। இதுதான் இந்து மதம்। இந்துவிசம் எப்ப தொடங்கிச்சு? 250 வருஷம் முன்னாடி ஒரு ஜட்ஜி தீர்மானம் பண்ணு। பட் இந்து மதம் 6வது செஞ்சுரியில தொடங்கி 8வது செஞ்சுரியில கன்ஃபார்ம் ஆச்சு। சைவிசம் வைஷ்ணவிசம் ரெண்டா பிரிஞ்சுது இந்து மதம், ரைட்டா? அதுவும் தமிழ்நாட்டுல தான் ஆச்சுன்னு நான் இப்ப சொல்றேன்। ஆல் ஓவர் இந்தியா சொல்றேன், இந்திக்காரர்கள் எல்லாருக்குமே சொல்றேன், தமிழ்நாட்டுல தான் ஆச்சு, நம்ம தான் மதிக்கல। ठीक है ना? लेकिन शैविज्म वैष्णविज्म कोई रूप नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रूप नहीं, सिर्फ प्रेम प्रेम प्रेम, इतना ही बोला। और ये 1st सेंचुरी में शुरू हुआ, 6 सेंचुरी में बाहर आया भक्ति मार्ग बोल के। ये भक्ति मार्ग आने के लिए किससे शुरू किया मालूम है? पहले भारत में पहले परमात्मा के बारे में बोलने वाला एक ही आदमी था। वो परमात्मा को 3 तरफ से बताया। वो एक पिता, दूसरा बेटा दैट इज विघ्नेश्वर, और उसके बाद परमात्मा का शक्ति जो हमारे अंदर है। इसको ये शक्ति को लेडी रूप में बना दिए और बेटे को बहुत सारे रूप में बना दिए और पिता को शिव के और विष्णु के रूप में बना दिया। ये किसने बनाया, किसने बताया? कोई वेद पुराण नहीं बताया। இன்னொன்னு சொன்னேன், இப்போ என்ன சொன்னேன், 6வது செஞ்சுரியில வந்தது, ஆனா இத தொடக்கத்துல ஒரே ஒரு மனுஷன் தான் சொன்னான், கடவுள் இருக்காருன்னு ஒரே ஒரு மனுஷன் தான் இந்தியால ஃபர்ஸ்ட் சொன்னான்। கடவுள் இருக்காரு, அது 3 விதமா இருக்கிறாரு। ஒண்ணு பிதா, அவருதான் இந்த உலகத்தையே படைத்தவர், அவர் இருக்காரு, அவருக்கு உருவம் கிடையாது, அவருக்கு ஒரு மகன் இருக்காரு। அதுதான் இவங்க எல்லாம் விக்னேஸ்வர் சொல்றாங்க, முருகன் சொல்றாங்க, ஐயப்பன் சொல்றாங்க, எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க, மாத்திட்டாங்க। அத ஒன்னே ஒண்ணுதான், ஓகே, அதுதான் பிள்ளையானவர், அதெல்லாம் பிள்ளையார் ஆக்கிட்டாங்க। பிள்ளை பிளஸ் ஆர் தான் பிள்ளையார், பிள்ளை பிளஸ் யார் கிடையாது, பிள்ளை பிளஸ் ஆனவர் தான் பிள்ளையார்। அப்ப பிள்ளையார்ன்றது ஒரு கான்செப்ட், அது बेटा। और उसके बाद அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாரு, இவங்க 2 பேரும் இருக்க மாட்டாங்க, அப்போ ஒரு
ஆத்மா ஒண்ணு இருக்கும், அது உள்ள இருக்கும், அந்த சக்தி வேலை செய்யும் உள்ள இருந்துனாரு. அததான் என்ன பண்ணிட்டாங்க, லேடி உருவம் கொடுத்தாங்க. எதுக்குமே உருவம் இல்லை பாருங்க. அப்போ இந்த ஒரு மனுஷன் தான் சொன்னான். आपको मालूम है वो आदमी कौन है? एक ही आदमी है। वही पहले बोला परमात्मा है बोल के भारत में पहले बोलने वाला एक ही आदमी था। वही बोला, वही भक्ति मार्ग बोला हुआ 6 सेंचुरी के पास, फर्स्ट सेंचुरी में बोला है। ये कौन है मालूम है? उसका नाम है तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर वो है एक ही आदमी, वो भी तमिलनाडु में। वो क्या बोला मालूम है? वो तीन रूप में बताया आप अपने पुस्तक में, 1330 स्लोगन्स जैसा लिखा है। वो दोहा है ना, दोहा जैसा लिखता है। उसमें वो 3 पार्ट बना। पहले परमात्मा के बारे में 3 पार्ट। पहला बोला परमात्मा बड़ा है, वो वही इस दुनिया में दुनिया को बनाया है, वो बड़ा है। और दूसरा बोला, दूसरा है बेटा, वो बड़ा है और उसको सारा अधिकार दिया, वही गवर्न किया इधर बहुत साल। और उसके बाद वो गया, दोनों गए, उसके बाद आत्मशक्ति को दिया। ठीक है ना? वही उसने 3 रूप में बताया। நான் என்ன சொன்ன தெரியுமா இப்ப எல்லாருக்கிட்டையும்? ஒரே ஒருத்தர் தான் சொன்னாரு கடவுள் இருக்காரு. ஒரே ஒருத்தர் தான் இந்தியால ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது அவர் ஒருத்தர் தான். அவர் தான் திருவள்ளுவர். அவர் தான் 3 பாட்டா சொன்னாரு கடவுளை. கடவுள் வந்து ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. ஓகே. அப்புறம் இன்னொருத்தர் இருக்கிறாரு, அதுதான் பிள்ளை. 3வது இருக்கிறாரு, அதுதான் சக்தி அப்படின்னாரு. அது 3 டாபிக்கா கொடுத்தாரு. நம்ம தமிழர்களுக்கு அந்த டாபிக் கூட தெரியாது. கடவுள் வாழ்த்து, நீத்தார் பெருமை, வான் சிறப்பு. 3 டாபிக்ல தான் கடவுளே இருக்கு. आप समझ रहे? ये 3 टॉपिक में लिखा, 10-10 श्लोक लिखा। ठीक है ना? पहले बोला एक परमात्मा है, वो दुनिया को बनाया है, तमिलनाडु को नहीं, इंडिया को नहीं, दुनिया को बनाया है। और उसका एक बेटा है, वो विघ्नेश्वर है, वही सब कुछ हमारे लिए किया है। वो तो नीता तिरमई ऐसा बोला है। फर्स्ट கடவுள் வாழ்த்து बोला है। கடவுள் गॉड परमात्मा बोल के पहले बोलने वाला आदमी तिरुवल्लुवर है, भारत में 2000 साल पहले। तभी परमात्मा के बारे में लोग ढूंढने लगे। वही भक्ति मार्ग में बदला 6th सेंचुरी में। 5वां सेंचुरी में ही ये आता है कि 5वां सेंचुरी में संस्कृत रूप में आता है, वो भी देवनागरी रूप में, वो भी तमिल का दूसरा वर्ड्स के रूप में आया, फिर हिंदी में बदला। उसको वाक्य ही नहीं था, उसको कोई नहीं लिख सकता था, सिर्फ बातें करने वाला भाषा था वो। तमिल ऐसा नहीं। तमिल 2000 साल पहले ही इतना बड़ा था, इतना लिटरेचर सब कुछ आया उसी टाइम पे, और उसको आगे बढ़ के ही देखना पड़ा तमिल क्या है। तो कितना साल पहले, 10 साल पहले उसका ओरिजिनेशन, पहला भाषा पूरा दुनिया में। इसलिए परमात्मा वो भाषा चूज किया है और वो आदमी को चूज किया है तिरुवल्लुवर को बोलने की। इसमें वो 3 सब्जेक्ट बनाया। एक है கடவுள் வாழ்த்து, दूसरा है நீத்தார் பெருமை, उसके बाद वान सिरप। इसमें देखिए கடவுள் வாழ்த்து बोलता है ना, वो ही बड़ा परमात्मा के बारे में बोला, 10 पंक्तियां लिखा। और बेटा के बारे में बोला, अपने लिए जान दिया बोल के, इसलिए विघ्नेश्वर का सर काटा है और खून बहा है। ये सब किसी को नहीं पता है, सब लोग तमाशा करते हैं।
उस रूप को रख के तमाशा करते हैं, गणपति बप्पा मोरिया बोल के डमा 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 डांस ड्रामा सब कुछ होता है, पानी में जाके डुबाते हैं, मारता है। उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तिरुवल्लुवर क्या बोला उनको पता नहीं। नीतार पेरुमै, वो बोला है नीतार पेरुमै, इसका मतलब है जो जिंदगी हमारे लिए दिया उसका उसका जो बड़ा है, बड़प्पन है, नीतार पेरुमै। उसके बाद बोला वान सिर्फ इसका मतलब क्या है मालूम है? ऊपर से आया है वो शक्ति, ये दोनों चले गए हैं, उसके बाद ऊपर से आया है एक शक्ति, वो तुम्हारे हृदय के अंदर में है, वही है वान सिर्फ बोला है। वान सिर्फ उसका मतलब है उधर से, आकाश से आया है, इसलिए वान सिर्फ बोला। तो इसलिए हम, इसमें बहुत सारा चीज है, हम पूरा नहीं बोल सकते, अभी टाइम बोल टाइम ओवर। इसलिए हम अब एक ही बात बोल देता हूं, इसलिए हम बोलते हैं कि कृष्ण भगवान किस कलर में है? कि मेघ के कलर में है, मेघ वर्णन बोलते हैं। वो तो काला काला के वो ब्लू कलर में रहता है, क्यों मालूम है? ऊपर से आया, वो शक्ति है। ये वैष्णविज्म में ये लोग वो शक्ति को मनुष्य के रूप दिया है, वही विष्णु बोल दिया। विन बोलते हैं तमिल में, विन, विन को विष्णु बना दिया, विष्णु बोला विष्णु बना दिया। तो वही मनुष्य के आदमी के रूप में, दैट इज मर्द के रूप में देखते हैं वैष्णविट्स। लेकिन साइवेट्स कैसे बोले मालूम है? वो शक्ति महिला के रूप में, पार्वती के रूप में देखा। इसलिए महिला रूप सब शक्ति है, हमारे अंदर रहने वाला शक्ति को ऐसा रूप बना के बना दिया, ये इतना छोटा बना दिया। और वैष्णव लोग क्या कर दिया, उसका अवतार बोल के, 10 अवतार बोल के, ये ड्रामा करके, वो ड्रामा करके, उसका बहुत सारा, ये सब ड्रामा करके सब कच्चा बुछा कर दिया, सारे जगह ऐसा फैला दिया। और आखिर में बोल दिया हम हिंदू है, हमें ही भगवान है, किधर भी भगवान नहीं है बोल। लेकिन सच मालूम है? नहीं मालूम। इन लोगों को जो बोलते हैं हमें हिंदू मालूम है, हमें हिंदू है, हम भी हिंदू है, हम भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अरे क्या है ये, हम हिंदू है। इनको तिरुवल्लुवर क्या बोला समझे? पूछ ले तो मैं, मालूम है तिरुवल्लुवर क्या बोला? கடவுள் வாழ்த்து क्या है मालूम है? मान सिर्फ क्या है मालूम है? इनसे बोलो, इनसे पूछे, कुछ भी नहीं मालूम है, जीरो है, जीरो। लोगों को मारना मालूम है। इसलिए मैं बोलता हूं, अगर सच बोलते हैं, सच, कोई धर्म नहीं, कोई धर्म के अगेंस्ट नहीं है, किसी आदमी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन सच बोलते हैं। பாருங்க, இங்க உண்மையை சொல்றோம், உண்மை. அதுதான் வான் சிறப்புன்னு வந்தது. என்ன மேல இருந்து வான் சிறப்பு என்பது மேல இருந்து வந்தது சக்தி. அதனால்தான் நம்ம வைஷ்ணவர்கள் என்ன சொல்லிட்டாங்க தெரியுமா? அந்த சக்தியை ஆணா சொல்லிட்டாங்க. ஆனா சைவர்கள் என்ன சொல்லிட்டாங்க தெரியுமா? அந்த சக்தியை பெண்ணா சொல்லிட்டாங்க. இதுதான் உண்மை, இதெல்லாம் தான் உண்மை. இந்த உண்மையை விட்டுட்டு எனக்குதான் கடவுளை தெரியும்னு குடிச்சிட்டு இருக்காங்களே, இந்த உண்மை யார் போய் கேட்கறது? எங்களுக்கு தான் இந்துசம் தெரியும் சொல்றாங்களே, அவங்களுக்கு திருவள்ளுவர் தெரியுமான்னு கேளுங்க, அவங்களுக்கு வான் சிறப்பை பத்தி தெரியுமான்னு கேளுங்க, அவங்களுக்கு நீத்தார் பெருமையை பத்தி தெரியுமான்னு கேளுங்க, கடவுள் வாழ்க்கை பத்தி தெரியுமான்னு கேளுங்க. ஒண்ணும் தெரியாது. ஆனா பீத்திப்பாங்க, எங்களுக்கு தான் கடவுள் தெரியும். உண்மையான கடவுள் தெரியணும்னா நான் திருப்பி சொல்றேன், நீங்க சரியான உண்மையை தேடணும், சரியான சரித்திரத்தை தேடணும். मैं फिर से बोलता हूं, आपको सच जानना है, आप सच जानना है, आप परमात्मा को जानना है, आप सच्चाई को ढूंढे और चरित्र, वो जो इतिहास है उसको ढूंढे, इतिहास और सच ढूंढे, परमात्मा आपके आगे, आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, सामने आके खड़े हो जाएंगे, आपको सब कुछ बताएंगे, ये गलत है, ये सही है। तो मालूम है, ये समझ लेना। इसलिए अभी टाइम खत्म हो गया, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं,
नहीं तो हम माइक ऑन करते हैं सबको, हम मिलेंगे कल और बात हम कल सुबह भी बात करेंगे। और कोई भी प्रश्न है आप कल पूछ सकते हैं, जरूर पूछिए। आपको प्रश्न पूछने के लिए इधर टाइम बोला है, आप प्रश्न पूछिए। और सबका माइंड ऑन है। अभी कल इसी टाइम में हम मिलेंगे, 9 मिलेंगे। और जो भी हम बोले हैं आप सिर्फ सुन के छोड़े नहीं, आप जाके टेस्ट करें। आपका गूगल तैयार है अभी तो गूगल सबके लिए तैयार है, आप कुछ भी जाके ढूंढ सकते हैं। अब गूगल ढूंढ लें और सब कुछ ढूंढ लें, जो भी मैं बोला है कुछ झूठ है आप आके मुझे पूछिए। अगर मैं झूठ बोला है आके मुझे पूछिए। நான் என்ன சொன்னேன்னா, இப்ப வந்து கூகுள்ல எல்லாமே இருக்கு. நான் இப்ப சொன்னதெல்லாம் பொய்யா இருந்தா நீங்க அந்த கூகுள்ல செக் பண்ணுங்க, வந்து கேளுங்க, சார் அந்த மாதிரிலாம் இல்ல சார் பொய் சொல்றீங்கன்னு சொல்லுங்க. நான் நிச்சயமா அது கரெக்ஷன் என்னன்னு சொல்றேன். எல்லாருக்குமே சேலஞ்ச். ஓகே, நார்த் இந்தியால இருக்கிறாங்க, நீங்க இருக்கிறீங்க, எல்லார்கிட்டயுமே சொல்றேன், நீங்க போய் செக் பண்ணுங்க. அப்படி கரெக்ட் இல்லைன்னு சொன்னா என்ன வந்து கேளுங்க. 20 வருஷம் ரிசர்ச் பண்ணிருக்கோம், 20 வருஷம் உள்ள நுழைஞ்சி 8 செட்டு புழிஞ்சு எடுத்திருக்கோம். நீங்க பைபிள்ல கேட்டாலும் புழிஞ்சு எடுத்து சொல்லிடுவோம், குரான்ல கேட்டா புழிஞ்சு சொல்லிடுவோம், வேதம் புராணம் உபனிஷத் சொன்னீங்களா அதையும் புழிஞ்சு சொல்லிடும், தமிழ் இலக்கியத்துல கேட்டீங்கன்னா அதையும் புழிஞ்சு சொல்லிடும். ஏன்னா 20 வருஷம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணல, முழுசா இறங்கி உருண்டு பிறண்டு இருக்கும். அதனால என்ன வேணா கேட்கலாம், நாளைக்கு வந்து கேளுங்க, எல்லாரையும் வரவேற்பேன். இன்னைக்கு இப்போ 10 நிமிஷம் லேட் ஆயிடுச்சு, அதனால நாம 9:30 முடிப்போம். 9ல இருந்து தினமும் 9 மணில இருந்து 9:30 மணிக்கு இங்க இருக்கு, சனிக்கிழமை வரைக்கும் இருக்கு, ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்ம